and degradation is showing that in the product of this reaction the number of carbon is going to be less. One carbon is less than the taken amide. जो भी amide लेंगे उससे एक कार्बन कम वाला amine बनेगा. So in this Hofmann bromide degradation reaction is saying that when any amide treated with bromine Br2 and NaOH एक्वस और इथेनॉलिक नो मैटर. ठीक है, एक्वस भी होगा इथेनॉलिक भी होगा नो मैटर इन बोथ ब्रोमीन एंड एक्वस और एल्कोहलिक NaOH. एक्वस और एल्कोहलिक NaOH. then it form first degree amine or primary amine by रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ये कार्बोनिल ग्रुप आपको एल्कोहल चैप्टर में बताया गया था कि ऑल दोज कंपाउंड इन विच C double bond that are called carbonyl compound and this C double bond O group is called carbonyl group. So this carbonyl group is released out and in this process the carbon of alkyl group is going to be attached with nitrogen at the place of कार्बन. जो कार्बन था अमाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ था अल्किल का कार्बन, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस विल बी ज्वाइन विद द कंबाइन विद द नाइट्रोजन. यहाँ कर रहा है migration of alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of amide to the nitrogen atom. कार्बोनिल कार्बन से हट करके ये नाइट्रोजन ऑफ NH2 क्या करके अटैच हो जाता है and it form amine. So this carbonyl group is released out, so its one carbon is going to be reduced. जैसे अगर यहाँ पर we will take CH3 CO NH2. So this is called ethenamide क्योंकि those carbon which are present in functional group they are counted in the main chain or parent chain. So its name is ethenamide and when it convert into amine then this carbon is going to be released out, so it convert methenamine. So in conversion अभी conversion discuss होगा. So in conversion whenever keep this in your mind, whenever you want to decrease one carbon in the product, जब भी आपको एक कार्बन किसी भी प्रोडक्ट में डिक्रीज करना हो, so you need to make the possibility to send that reactant to undergo Hofmann reaction. There are so many method, but in your syllabus, हम आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, इस लेवल की बात करें क्लास 12 के लेवल की, आपके सिलेबस में अगर कहीं पे भी जैसे आ गया इथेनॉल टू मिथेनॉल एक कार्बन कम करना है, पेंटेनॉल टू ब्यूटेनॉल एक कार्बन कम करना है, you want to reduce one carbon in the product, then reactant. In any chapter, in any compound, you want to remove one carbon, one step will be there in the conversion, that is Hofmann bromamide. उसमें आपको अमाइड में कन्वर्ट करना होगा और फिर अमाइड से एक कार्बन कम करके अमाइन बनाना होगा. कैसे वो हम लोग देखेंगे स्टेप, सम ऑफ द कन्वर्जन इन 5 स्टेप, नो मैटर, बट एक एक चीज याद रखिए कि अगर कार्बन कम है, ठीक है, दिस इज नॉट मेथड, मत याद रखिए विल बी कन्वर्ट इनटू अमाइन. इस तरीके के अलावा ये भी याद रखिएगा कि दिस इज द मेथड टू रिड्यूस वन कार्बन इन द प्रोडक्ट एक कार्बन कम करना हो तो हमको यही मेथड यूज करना, उसमें एक स्टेप ये आएगा ही आएगा, चाहे कैसे आएगा वो देखा जाएगा कन्वर्जन में. सो दिस इज Hofmann bromamide
डिग्रेडेशन। ब्रोमेमाइड वर्ड पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या सबको मिल जाए। ब्रोमेमाइड मीन्स ब्रोमीन एंड अमाइड with a co-degradation from amine, and rest product will be this NaOH will be react with Br to form NaBr, and rest NaOH with Br and 2 NaOH, NaOH plus 2 OH minus plus CO, C double bond O. This carbonyl group, these all are combined to form NaHCO3, which will be broken down to give 2 CO3 and H2O, जो ब्रेक होकर के Na2CO3 और H2O बनाता है. So final product is Na2H2O, NaBr and amine. This is Hoffman bromamide degradation reaction. और सारे रिएक्शन को याद करने का सिंपल तरीका है कन्वर्जन. जितना ज्यादा कन्वर्जन प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे रिएक्शन अपने आप क्लियर होते जाएंगे. And after that physical property we had discussed, and then after chemical property. In chemical property yesterday I had completed the acylation to form the benzoylation to form the benzamide, carbyl amine reaction, which is also called, I had given the name isocyanide test. This reaction is only given by first degree amine, not given by second degree or third degree amine. So this is the test which used to distinguish primary amine from secondary or tertiary amine. Then after last I had discussed yesterday, that is diazotization or reaction with nitrous acid, in which I informed you that the reaction is shown by all three types of amine. Reaction सारे थ्री टाइप के अमाइंस मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी शो करते हैं, बट इन डिफरेंट वे. इन योर सिलेबस ओनली प्राइमरी अमाइन रिएक्शन इज गिवन. आपके सिलेबस में केवल प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन है. एंड इन प्राइमरी अमाइन देयर आर two condition. One is for aliphatic and another is for aromatic. So aliphatic is from the aliphatic diazonium salt. But this aliphatic diazonium salt is unstable. So it react with moisture or water to form the final product alcohol. So aliphatic amine का nitrous acid से reaction करने पे final product alcohol मिलता है, diazonium salt नहीं मिलता है. ठीक है. And in aromatic I informed you कि it form the diazonium salt, aromatic diazonium salt, which is stable at room temperature. So it give the diazonium salt. This we can use as the process to distinguish between aliphatic and aromatic. सारा अभी आपको कन्वर्जन में और डिस्टिंग्विशमेंट में सब मिलेगा, बस माइंड में रखे रहिए. Now next one, this is the another very important reaction with एरिल. एरिल लिखा है, एरिल के जगह पे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेंजीन, तो बेंजीन. देखिए नाम याद रखिए, एरिल मतलब एनी एरोमेटिक विल बी देयर. इन योर सिलेबस द एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, दैट्स व्हाई एरिल के जगह पे लिख के दिया गया है बेंजीन. सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl. C6H5 means benzene ring. ये C6H5 हो गया. C6H6 होता है, लेकिन वन प्लेस पे इसके हाइड्रोजन नहीं है, किसी भी एक प्लेस पे, एनीवेयर, कहीं पे भी. ठीक है. SO2 O double bond and Cl. Expanded octet rule. Sulfur is going to expand its octet, you can say,
और यू कैन से कि द टू ऑक्सीजन आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों ऑक्सीजन किससे अटैच है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहेंगे। एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 12 आपको दिखाना पड़ेगा। सो अब तो कोऑर्डिनेट वाला रूल फॉलो होता है। सो सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, and this benzene sulfonyl chloride is called Hinsberg reagent। हिंसबर्ग रिएजेंट, ये क्वेश्चन आपका आता है आपके किसमें हम कहें, आपके वाइवा में। एग्जामिनर इज आस्किंग कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। उनको लगता है कि मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जल्दी स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। सो इन सब चीजों को याद किए रहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट, और एक बताया गया आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट, दैट इज ड्राई Cl3। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, और जो रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ एरियल सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। इसको हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। सो व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अमाइन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। This benzene sulfonyl chloride can react primary and secondary amine but not so reaction with third degree amine. So this benzene sulfonyl chloride is so the reaction with or react with primary and secondary amine. You can see here third line, primary secondary amine but not react with third degree amine. Third degree amine से react नहीं करता है. So this reaction you can use to distinguish between the first degree and second degree amine. Sorry, not first degree and second degree, first degree and third degree amine और second degree and third degree amine. Means आपको जो distinguishment करना है, अगर उस distinguishment में से एक amine third degree का है, then you can use this method, क्योंकि third degree amine will not give the reaction and first degree and second degree amine will give the reaction. Now question is there कि why first degree and second degree are giving and third degree is not giving. For this we need to see the reaction. See, it is with first degree, ठीक है, ये first degree के साथ है, एक first degree के साथ है, फिर ये second degree के साथ है, एंड देन थर्ड डिग्री के साथ नहीं होता है। क्यों? देखिए, फर्स्ट डिग्री, व्हेन हिंसबर्ग रिएजेंट और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड react with first degree amine, you can see NH2 primary amine react with first degree amine, then by substitution reaction displace Cl displace and both are going to be combined with each other। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। सो यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से Cl निकाल दीजिए और दोनों को कंबाइन कर दीजिए। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बेंजीन रिंग SO2 ये हो गया, N आके अटैच हो गया, H लोअर साइड वाला है और राइट साइड में C2H5। Now in this, remember previously it was amine and it was sulfonyl group, as like जैसे आपको इसके पहले अगर आप याद करें एसाइलेशन, तो previously it was, ठीक है, एसिटिल and amine, and when it combine Cl यहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था, combine CO and acetyl को क्या बोल, CONH is amide, so सेम इसी तरह से SO2NH SO2NH2 होता है, लेकिन एक H के जगह पे यहाँ पे एल्किल ग्रुप आप मान लेंगे, तो SO2NH is called सल्फोनामाइड। ये
अमाइड होता है, एंड दिस SO2 NH2 और SO2 NH इज कॉल्ड सल्फोनामाइड। सो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया सल्फोनामाइड। नाउ व्हाट विल बी इट्स नेम? मेन फंक्शनल ग्रुप सल्फोनामाइड हो गया। तो जो साइड सल्फर से अटैच होगा दैट विल बी मेन चेन, वो मेन चेन हो जाएगा। एंड दैट साइड विच विल बी अटैच बाय कार्बन दैट विल, वो साइड से क्या अटैच है, and it is called an ethyl because ethyl is attached by nitrogen atom, no any numbering is there. Then benzene main chain and sulfonamide is the functional group name. So when first degree amine primary react with Hinsberg reagent or benzene sulfonyl chloride, then it form, ठीक है, then it form एन एल्किल। जो साइड नाइट्रोजन से अटैच होता है वही साइड आपका जो होता है जो कार्बन या सल्फर से अटैच होता है दैट इज मेन चेन। सो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड SO2NH, बेंजीन सल्फोनामाइड। देखिए हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सल्फोनिल ग्रुप। यानी कह रहा है कि सल्फोनामाइड में, ठीक है, सल्फोनामाइड में जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। वह स्ट्रॉन्गली एसिडिक है क्योंकि ये जो सल्फोनिल ग्रुप अटैच है इट इज EWG, और EWG मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो हाइड्रोजन तो प्लस में कन्वर्ट रेडी रहता है। सो हाइड्रोजन जो यहाँ पे सल्फोनामाइड में, रिमेंबर दिस इट इज रिटेन सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड में जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है वो ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब सल्फोनिल क्लोराइड और अमाइन में नहीं कर रहा, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस एसिडिक नेचर इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली मतलब क्या होता है, बेस। इट इज सॉल्युबल इन एल्कली मतलब बेस। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन इज सॉल्युबल इन बेस। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बना कि द प्रोडक्ट विच फॉर्म बाय हिंसबर्ग रिएक्शन या हिंसबर्ग रिएजेंट विथ प्राइमरी अमाइन इज सॉल्युबल इन alkali or not, then soluble. Then why it is soluble? It is soluble because in this the sulfonamide group is having the hydrogen not carbon at nitrogen, and that hydrogen is acidic in nature. Now why this hydrogen is acidic in nature? Because the nitrogen attached with sulfonyl group which is electron withdrawing group, and due to this nature it ready to take the electron, accept the electron and form the H plus easily। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे मे भी हो सकता है डबल बॉन्ड बन जाए, पार्शियल डबल बॉन्ड। सो ये this hydrogen can be release out, so this is strongly acidic, that's why it is soluble। ये आपको रीजन बता रहा है कि क्यों soluble होता है। अब ये रीजन क्यों बता रहा है ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। if second degree amine react with Hinsberg reagent बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये सेकेंड डिग्री अमाइन आ गया। देन फिर अगेन सेम, this Cl and H will be released out and combined by single bond. So benzene ring SO2 and N C2H5 C2H5. So this is again sulfonamide। में लिखा सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड हो गया। It's 2 hydrogen are alkyl group.
So these two are, and the main chain will be that side which will be attached with sulfur. जो sulfur से attach होगा वो main side हो गया. Two alkyl group are attached with nitrogen, that's why it is written 2 times NN. Diethyl, दो ethyl group attach है, benzene sulfonamide, and this is insoluble in alkali. Now question is given primary amine react with Hinsberg reagent, then the formed product is soluble in alkali. But when secondary amine react with Hinsberg reagent, then the formed product, वो भी सल्फोनामाइड था, ये भी सल्फोनामाइड है, is not ठीक है soluble in alkali, that is insoluble in alkali. Why? Because it is not having any hydrogen at nitrogen, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है. And if hydrogen will not be there, it will not able to give the H plus, और H plus अगर नहीं देगा then it will be not acidic. So ये acidic नहीं होगा तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, मीन्स एल्कली में soluble नहीं होगा. So remember this. So by this method we can distinguish the primary secondary also. इस मेथड से हम प्राइमरी सेकेंडरी भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड टू गो फॉर सेकेंड स्टेप. You need to write कि when primary and secondary both amines are react with Hinsberg reagent, then it form benzene sulfonamide. But the benzene sulfonamide means product of primary amine. Product of primary amine is soluble in alkali, but product of secondary amine is insoluble in alkali. ये दो हुआ. Third, why third degree amine is not react with Hinsberg reagent? Reason clear. Reason आपके सामने है. In the Hinsberg reagent, what is happening? H is released out, Cl is released out to form the bond. But in third degree amine, there will be no any H present in amine. अमाइन में कोई H नहीं होता है. थर्ड डिग्री अमाइन में अमाइन के नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं होता है. If no H will be there, so it will not show this reaction. So displayable hydrogen is not present, or you can say hydrogen atom is not attached. Any hydrogen atom is not attached at nitrogen in third degree amine. That's why it not show the reaction with Hinsberg reagent or benzene sulfonyl chloride. Now see, it is written कि this is the, आप इसको कह सकते हैं, this is the most important test to differentiate or distinguish primary, secondary and tertiary all types of amine. ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को अलग करने के लिए भी यूज हो सकता है मिक्सचर में. एक मिक्सचर में फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, तीनों अमाइन है. इसमें आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया ये हिंसबर्ग रिएजेंट. प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट करेगा, टर्शियरी रिएक्ट नहीं करेगा. तो प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएगा, टर्शियरी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. इसको सेपरेट कर लिए. नाउ प्राइमरी सेकेंडरी अमाइड बनाएगा. अब उस मिक्सचर को, जो प्राइमरी और सेकेंडरी का मिक्सचर आपका बचा टर्शियरी को अलग करने के बाद, उसको यू विल बी पास इन एल्कली. एल्कली में पास कर देंगे तो प्राइमरी का प्रोडक्ट एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, सेकेंडरी का प्रोडक्ट डिसॉल्व नहीं होगा. सो उसको फिल्टर करके अलग कर देंगे तो सेकेंडरी हमको मिल जाएगा और प्राइमरी डिसॉल्व हुआ रहेगा. उसको हम फिर आगे किसी मेथड से सेपरेट करके फाइंड कर लेंगे. So this method is used to separate primary, secondary, tertiary from any mixture, as well as to distinguish the primary, secondary and tertiary amine. दोनों काम कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं मिक्सचर से, और अगर अलग अलग दिया है तो उसको हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है. So this is Hinsberg test or reaction with benzene sulfonyl chloride.
कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है और नाम कैसे लिखा जा रहा है याद रखना है। सीएल के जगह पे आपको क्या ले जाना है, सीएल के जगह पे ला करके उसमें से एच हटा के पूरा ऐड कर देना है एंड प्रोडक्ट नेम विल बी सल्फोनामाइड। सो वंस अगेन स्क्रीन एंड वॉइस बोथ आर क्लियर ना? एनीवन प्लीज? हेलो? Yes, sir. Clear. Okay. So our next property, that is Hinsberg reagent, is over. Now I am going to discuss the ES reaction, then I will come in basic character. तो ES reaction, ES reaction the most important जो एरोमेटिक में हमेशा आता है। सो ES रिएक्शन में आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात नहीं करना है। डोंट आस्क कि सर ये प्राइमरी के लिए कि सेकेंडरी के लिए कि टर्शियरी के लिए, बिकॉज ES रिएक्शन इज एरोमेटिक और एरोमेटिक में एक ही आपके में दिया रहता है। जैसे आपका हेलो एरेन में क्लोरोबेंजीन था, एल्कोहल में फिनॉल था, ईथर में एनिसोल था, वैसे अमाइन में द एरोमेटिक कंपाउंड इज एनिलीन। जितना भी रिएक्शन होगा सब इस एनिलीन से होगा। रिमेंबर, बेंजीन रिंग कंटेन Cl, ये हेलो एरिन में था क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग कंटेन OH, फिनॉल, ये एल्कोहल का एरोमेटिक था। बेंजीन रिंग कंटेन OCH3, एनिसोल, एनिसोल बताया गया था, ईथर का एरोमेटिक था। नाउ बेंजीन रिंग कंटेन NH2, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। फिर से याद दिला दे रहे, एनिलीन। एनिलीन एंड एनिसोल दो चीजें हैं। एनिलीन is amine, anisole is ether, OCH3. Now, so for ES reaction, as you know, we need to first check that the functional group attached at benzene ring is ortho para directing और meta directing। हमको पहले ये चेक करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और मेटा डायरेक्टिंग है। फॉर दैट वी आर जस्ट ड्रॉइंग द रिजोनेंस। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजोनेंस ड्रॉ करते हैं। सो रिजोनेंस में हम चेक करते हैं कि द फंक्शनल ग्रुप अटैच एट बेंजीन रिंग इज EDG और EWG, तभी हम रिजोनेंस बना पाएंगे। सो मैंने आपको पहले बता दिया कि इन योर सिलेबस ऑल द चैप्टर कंटेन EDG, केवल एक चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर EWG है, इसीलिए मैंने अभी उसको छोड़ के अमाइन पे पहले पढ़ाया है, बिकॉज इट इज अगेन EDG। हाउ यू विल फाइंड दैट इट इज EDG? तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट यू नीड टू सी, आपको केवल एक चीज देखना है कि बेंजीन रिंग से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा एटम अटैच है, कौन सा एटम डायरेक्ट अटैच है। NH2 अटैच है, NH2 में कौन सा एटम डायरेक्ट अटैच है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 आपने लगाया, 3 आर बाइंडेड विथ हाइड्रोजन एंड बेंजीन रिंग, 3 हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग से बाइंडेड हो गए, 1 लोन पेयर बच गया। एंड इफ द एटम which attach with benzene ring that is having lone pair, अगर उसके पास lone pair होता है so that will be EDG, वो रहेगा EDG। so it is showing that nitrogen of amine group is having lone pair, so it is EDG। so इसका भी रिजोनेंस ठीक उसी तरह से बनेगा as like haloarine, as like phenol and as like anisole। सब में हमने EDG से जो बनाया था सेम बनेगा कि this lone pair of nitrogen will be comes between the nitrogen carbon to form the double bond and the nitrogen becomes positive charge, and the bond present at first between first and second carbon that move at second carbon to form the negative charge। so now this the electron present at second carbon, this will move to form the bond between second and third carbon, and the bond present between third and fourth carbon that will be moved at fourth carbon in the form of electron। electron bond बनाएगा, bond electron बनाएगा। now the electron present at fourth carbon that will move to form the bond between fourth and fifth carbon,
and the bond present between fifth and sixth carbon that will move as electron at sixth carbon. Now at last the electron present at sixth carbon that will form the bond between sixth and first carbon, and the electron present between nitrogen and carbon that will be moved back at nitrogen. So after a complete circle we will get the 5 structure. सिंपल सा है, पहले ये क्योंकि इट इज ईडीजी तो इसके होने से ये शुरू हुआ कि इसके पास कैपेबिलिटी, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, बॉन्ड यहाँ बना और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये यहाँ पर आया बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, रीअरेंजमेंट, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंड लास्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया. सो वी विल गेट अ 5 स्ट्रक्चर. Out of 5 structure, I informed you कि just see the second, third and fourth structure. Don't see the first and fifth structure. पहला और पांचवा स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है. क्यों? Because it is not having charge. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. So we will see the second, third and fourth structure. So after drawing the reads, पहले heading रहेगा ES reaction of aniline, and then after resonance in aniline you will draw these 5 structure. Data statement by above second, third and fourth is we can see increase electron density at ortho and para position. Electron density ortho और para क्या करता है, increase. So अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल so upcoming electrophile will be attacked at it means single bond NH2 is ortho para directing group. इसका मतलब आपको पता चल गया कि सिंगल बॉन्ड NH2 group is ortho para directing. Now resonance ये पूछा वाई ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग है, तो आप रेजोनेंस बना के दिखाना है कि बाय सेकंड structure we can see electron is increases at orthopara position. So upcoming electrophile that is positive species. And another information आपको याद रखना है कि out all the functional group which you have studied till today, and I सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप जो होता है ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो होती है, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है. करने से क्या बेनिफिट होता है या लॉस होता है ये हम आगे देखेंगे. ये याद रखिएगा कि ये बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है. एक्टिवेटिंग ग्रुप दो आपने पढ़ा होगा 11th में, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग. सो NH2 ग्रुप इज पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप. केवल नहीं लिखा है पावरफुल. इसका क्या फायदा होगा नुकसान होगा वो आगे देखेंगे. Now see, in this we need to discuss how many थ्री डिनेशन जिसमें ब्रोमीन हमको नहीं पढ़ना है. इज हैलोजिनेशन ब्रोमिनेशन. तो पहला हमारा क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ ब्रोमिनेशन. नाउ सी एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर. जब एनिलीन ब्रोमिनेशन करता है और ब्रोमिनेशन ये करता है ब्रोमीन वाटर केस. फिनॉल की तरह दो केस में नहीं है. फिनॉल दो केस विथ ब्रोमीन इन CS2 एंड ब्रोमीन वाटर. तो ये केवल एक केस है ब्रोमीन. अंडरगो ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, देन इट फॉर्म
एनिलीन बन रहा था 2 ट्राई ब्रोमो 6 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, वन प्रोडक्ट 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट अलग अलग नहीं बनाता है, right from a single product that is 246 tribromo aniline means trio product, ठीक है। it is due to the high nature of NH2 group, because NH2 group is powerful activating group, so it not form the ortho and para product। ये ortho para product नहीं बनाता है, ये 246 ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनाता है। मतलब जब भी प्रोडक्ट बनाएगा तो ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूएंट जाएगा, केवल ऑर्थो और केवल पैरा अलग अलग नहीं बनाता है। जैसे अभी तक आप देख रहे थे कि एनिसोल में 1 ऑर्थो 1 पैरा, और फिनॉल में CS2 के साथ करा देते थे तो 1 ऑर्थो 1 पैरा मिलता था। इसमें ऐसा केस नहीं है, ये बनाएगा तो ऑर्थो पैरा एक साथ मीन्स 246 ही बनाएगा, ऑर्थो और पैरा अलग अलग नहीं बनाएगा। दिस इज ड्यू टू इट्स दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स पावरफुल एक्टिवेटिंग नेचर। नाउ द क्वेश्चन इज देयर, देन इफ वी वांट टू प्रिपेयर ओनली ऑर्थो और पैरा, देन हाउ कैन वी प्रिपेयर? अगर हमको केवल ऑर्थो पैरा ही चाहिए हो तो हम कैसे बनाएंगे? द नेक्स्ट इज हियर, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, आपको ऑर्थो पैरा बनाना है, देन यू नीड टू फर्स्ट डिक्रीज इट्स एक्टिवेटिंग नेचर। पहले आपको इसके एक्टिवेटिंग नेचर को कैंसिल करना होगा। हाउ वी विल कैंसिल दिस? अब इसको हम कैंसिल कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनिलीन का एसाइलेशन कराना होगा। when aniline undergo acylation, acylation में आपने देखा था कि एसिल क्लोराइड से भी कर सकते थे, एसिड एनहाइड्राइड से भी कर सकते थे, और ईस्टर से भी। तो एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, पीरिडीन के प्रेजेंट में, देन इट फॉर्म अमाइड CONH, ये क्या बना देता है? अमाइड। एन के साथ फेनिल अटैच है, एन फेनिल इथेनामाइड, या यूपीएससी नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया एसीटीनेलाइड एसाइलेशन। अगर आपको याद न हो तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी में सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला प्रोसेस एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, एनिलीन का रिएक्शन तो बना रहा था एन फेनिल इथेनामाइड और एसीटीनेलाइड। सो आफ्टर डूइंग दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को कराने के बाद मींस एनिलीन का एसाइलेशन, एसिटाइलेशन नहीं एसाइलेशन कराने के बाद, नाउ एनिलीन इज कन्वर्ट इनटू अमाइड। अब ये एनिलीन नहीं रह गया, नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू अमाइड ग्रुप, एंड अमाइड ग्रुप की एक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। So it's that nature, that is powerful activating nature is now reduced because amine is not there. वहाँ पे amine वो amide में। Now this ये वो ब्रोमीन वाटर से था, ये ब्रोमीन वाटर में नहीं, ब्रोमीन को एसिटिक एसिड में मिला के ब्रोमिनेशन कराएंगे, देन इट फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तब ये आर्थो और पैरा बनाएगा, क्योंकि यहाँ पैरा मेजर लिखने का मतलब है कि इट, सो आर्थो आप इसके साथ एक प्रोडक्ट आप चाहे इफ यू वांट यू या प्रोडक्ट सेम हैं, दैट ऑर्थो ब्रोमो एसिड will be minor and para bromo acetinolide will be major. Now at last consent arthro and para position, जब BR position पे आ जाता है, it will undergo acidic hydrolysis. Hydrolysis आते हैं, in acidic hydrolysis this will be move to react with OH and form acetic acid, and this
H plus comes here to form NH2. So हमारा aniline group वापस हमको मिल जाता है. And now the final product is orthobromoaniline and parabromoaniline, जिसमें ऑर्थो माइनर है इसलिए उसको नहीं दे रहा है, पैरा दे रहा है. सो इफ वी वांट टू प्रिपेयर ओनली पैरा प्रोडक्ट, then first we need to reduce its powerful activating nature. For that it undergo acylation to convert into amide, because amide is less active, less activating group than amine. So now when it will undergo bromination, it form ortho and para product. Para will be major, and after ortho and para formation, it will undergo acidic hydrolysis, so it convert into aniline back. So now we will get the ortho and para aniline, ortho and para bromo aniline. So remember ये question भी आता है कि for formation of parabromoaniline or ortho-parabromoaniline, why it is necessary to first aniline undergo acylation. पहले ये क्यों जरूरी है कि एनिलीन एसाइलेशन करे, डायरेक्ट हम ब्रोमिनेशन क्यों नहीं करा सकते हैं. रीजन, इफ डायरेक्ट ब्रोमिनेशन विल बी देयर, देन it is highly powerful activating group, so it will always form the 2,4,6 tribromoaniline. It will not form the orthopara product. So to reduce its powerful activating nature, first aniline undergo acylation to form amide, due to which its activating nature is reduced. Now it undergo bromination to form orthopara product, which undergo now acidic hydrolysis to form orthopara aniline. So next question will be there, why acylating nature of amine is reduce हो जाता है, because after acylation amine is converted into amide. Acylation convert हो जाता है amide, and amide group is less activating amine, नहीं तो उसका नेचर वहां पे नहीं रहेगा. सो फॉर स्पेशल इंफॉर्मेशन की में 1 और अगर हमको केवल पैरा बनाना हो तो क्या करना होगा, then bromination then hydrolysis, and same will be happen. एक और बस डिस्कस कर 2-3 मिनट. नाइट्रेशन, aniline undergo nitration, then it form, ठीक है, not a single product, it form a terry oxidation product, or you can say 3 product, mixture of 3 product. ये आपके में केवल एक ऐसा रिएक्ट इन योर होल चैप्टर, होल सिलेबस, in which ortho, meta and para, all 3 are formed. तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं ऑर्थो में. इसमें ऑर्थो सबसे कम होता है 2%, मेटा 47% एंड पैरा 51%. इस चीज पे ही हम स्टॉप करेंगे. आपको थोड़ा समय दे रहे हैं, आप इसको पढ़िएगा, आगे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्यों ऐसा होता है. क्वेश्चन यही पूछता है कि एज वी हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, एंड एज यू नो, जैसा आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड NH2 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, देन हाउ इट फॉर्म द मेटा, या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो ऑर्थो पैरा बनाएगा. अभी आपने देखा है मेटा 47% बनाता है. ये नहीं कि 1-2% में भी चल आ गया होगा, बन गया होगा. 47% मतलब अप्रोक्सीमेटली पैरा के बराबर. सो व्हाट इज द रीजन दैट aniline undergo nitration, then it form product. क्या रीजन है कि NH2
is orthopara-directing, but in nitration it form the meta. ठीक है, it is not forming small amount. Orthopara derivative के अलावा significant amount of meta derivative also form. ऐसा क्यों? Then reason is in nitration we are providing the acidic medium. नाइट्रेशन के केस एनिलीन क्या है? बेस है, सो इट गेन द H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है। इन एनिलीनियम आयन जो लोन पेयर इसका था नाइट्रोजन का, दैट लोन पेयर इज नाउ पार्टिसिपेट टू फॉर्म द बॉन्ड विथ हाइड्रोजन. सो नाउ इन एनिलीनियम आयन दिस नाइट्रोजन इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर. और मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी एटम के पास लोन पेयर होता है देन इट इज ईडीजी, तभी ये ईडीजी होता है. बट आफ्टर फॉर्मेशन एनिलीनियम आयन इट इज नॉट हैविंग लोन पेयर, सो इट बिकम्स ईडब्ल्यूजी. ये क्या हो जाता है? ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. डोनेटिंग की जगह विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग होता है. मेटा NH2 single bond NH2 is orthopara directing but NH3 plus is meta directing. तो यही चीज यहाँ बता रहा है कि why aniline is orthopara directing, then it produce significant amount of meta product in nitration, because in nitration we are providing the strongly acidic medium. In strongly acidic medium एनिलीन को गेन करता है एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन, एंड दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग. ये एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है. सो इट हैज बीन सीन कि अगर हम 100% एनिलीन लेते हैं तो इसमें 47% एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन कन्वर्ट 3% है वो इनके फॉर्म में ही रहता है. सो